Hello, everyone, and very good evening. I hope you all are good and doing well. So, today after long time we are meeting here, है ना? तुम लोगों का एग्जाम था and something. So, how was your paper, everyone? Was it good? सबका पेपर अच्छा गया? Everyone did well? Well means satisfied or not. Doing well has a meaning. It doesn't mean you are topping the list, you are on the top of the list. It may be you're but you're satisfied. Satisfaction matters. So, how many of you are satisfied with what you did in the recent examination? Yes. Not satisfied at all. Your expectation is high. I mean, not high, maybe it's a good one, but you were not able to reach to that point, but it's fine. है ना? Marks define somebody. कोई नहीं यार. Nobody is satisfied. It feels like, you should leave more of you should get a bit more older to be more satisfied in your life, because when you live a good chunk of this earth, slowly and slowly you learn to be satisfied. I mean, you start getting joy from everything, from anything, I would say. So it's the problem of you being a teenage. Very much constant of time. समय का constant हर जगह है ना? समय ही देता है हमें, क्या करोगे? चलो कोई नहीं. But I'm satisfied with everybody's performance. I don't know your result, but I know you people are trying hard. I won't say one should not try that much hard. अच्छा कर रहे हो तुम लोग, पढ़ रहे हो सही से, मेहनत कर रहे हो, ये काफी है. ठीक है. सो और अच्छा करो. That I would say. What we are going to read today, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी एक दो, एंड उसके बाद हम लोग कंडक्शन के प्रोसेस को डील करेंगे. एंड वेरी सॉरी फॉर हैदराबाद रीजन, बिकॉज आप लोगों का क्लास कैंसिल नहीं था फॉर 2 days, so your syllabus is a bit ahead, and you were getting started with oscillation or something, but I'm really sorry I cannot start with that because we are still here, because we couldn't get class for 2 days in Pune region. Done it. So anyway, do the question first, everyone. Uh, Read the question carefully, try doing it, and if you're getting the answer, let me know in the chat box. I'm here, we'll be back in 1 or 2 minutes. Okay? So take your time, do it.
Yes. How many of you got it? कुछ लोग का आया? It's too cold in here. Even able to understand the question? Should I make you understand it? Okay. So let me make you understand what is given. A sample of 0.1 gram of water at 100 degrees. So we have water. Done. At what temperature? At 100 degree. And what is the mass of water given here? That is your 0.1 gram. At normal pressure, to convert to steam at 100 degrees. So we are converting it into steam. So we are getting now steam at 100 degree. Obviously, same mass is getting converted. So mass is 0.1 gram. And in this process, 54 calorie heat we are giving. Okay? If the volume of steam used is this much, the change in internal energy of the sample is how much? So volume of steam is given. Volume of a steam is how much? This is your 167.1 cc, centimeter cube. So what is the volume of water present here? Can anyone tell me how you will calculate that? सो बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में बहुत जगह दिया नहीं होता है. डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना, दैट इज रिटन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है. यहाँ पे वाटर गिवन इज 0.1 ग्राम. सो हाउ मच वॉल्यूम देर इज, density is given, mass volume is how much? 1, mass is 0.1 gram, so volume will be 0.1 cc. So initial volume is 0.1 cc, final volume this much, and you are giving it this much amount of heat. Done it? So what is the change in internal energy? Use first law of thermodynamics. First law of thermodynamics क्या कहता है? Heat given to the system will get divided into work done plus change in internal energy. डेल्टा यूज से इंडिकेट करते थे, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो कैलकुलेट इट. वर्क डन निकाल सकते हो ना. प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, लिखा है ना. नॉर्मल प्रेशर थिंग्स आर हैपनिंग. सो प्रेशर इज दिस मच and it is given in SI unit 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 10 to the power 5. So work done you can calculate P delta V. Then heat you are already given. Heat being given is 54 calorie, but it is given in calorie, which is not SI unit, it's GS unit. So you need to convert it. And how you will convert calorie into joule? Calorie को joule में कैसे convert करोगे? 0.18 factor will come, right? है ना. 54 1 calorie is equal to क्या होता है? 4.1 joule. So this much joule. Delta Q is this much. Work done is P delta V. So change in internal energy. Now which option you are? Let me know. सभी लोग सॉल्व करो और बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है नाउ. हु इज इनएविटेबल? ये एडजेक्टिव दो ही लोग यूज करते हैं. एक वो जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं फील महसूस किया, आई मीन नो फाइट, ट्रू वाला. एंड दूसरे वो जिन्होंने बहुत फाइट किया. तो बताओ कौन है ये आई एम इनएविटेबल?
एनीवन गॉट द आंसर? क्या हो गया, सब सो रहे हो? एम आई ऑडिबल, विजिबल? कुछ तो लिखो। यस मैम, चलो जिंदा है सभी, ये अच्छी बात है, बता दी तुम लोगों ने। सो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन शुड बी फास्ट एवरीवन, एंड एट द सेम टाइम शुड बी एक्यूरेट। क्वेश्चन सबको समझ में आया ना? Anyone having doubt in understanding the question or whatever I explained? In that, anyone has any doubt? Doubt है then you can ask me and we can clear it. चलो ठीक है, क्योंकि there is no point of giving more time, right? So answer will be what? 208.8 joule. Same thing you have to do. Delta Q was 54 calorie. Convert it into joule. Work done is P delta V. Pressure is this much. Delta V निकाल लो. This minus this. ठीक है, वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट, राइट? सो वर्क डन इज दिस मच. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू विल बी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, सो दिस इज दिस. सिंपल, 208.8 joule, right? It's the answer. So correct answer will be what? It will be B. ठीक है, having any doubt in this? Got answer, चलो, very good. Just give me 30 seconds, ठीक है, I will be back. So now let's start with the class. I mean, let's move ahead. So हमने प्रीवियस कहाँ एंड किया था? कंडक्शन से. कंडक्शन में आई टोल्ड यू वन वेरी बेसिक थिंग. इफ देर इज वन place where temperature is high, I mean, let's T1 and then this is T2, and something that is connecting these two region is a solid, डन है, जिसका जिसके थ्रू क्या होगा, हीट पास करेगा थ्रू द मेथड ऑफ कंडक्शन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, सो जस्ट letting you remind. I mean, so energy that flow will be how much? Energy flowing delta Q by delta T was equal to Ka delta T by what? L. So what is this A, L and delta T? If we break it, delta T is equal to T1 minus T2. T1 is high temperature, this is high temperature, and this is cold temperature. Okay. So delta T is this. L is what? L is the length along which energy travel. So this is length of the tube here. And A is what? A is the cross-sectional area where heat is entering. So this is A. And K is the thermal conductivity of this material. And it is function of nature of material. ठीक है, this is this. उसके बाद मैंने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताया था. when heat starts flowing initially at t equal to 0, when this connection is made at t equal to 0, then what will happen? Heat will flow and all amount of heat that is entering here will not reach here. Initially, before steady state, what will happen? That some amount of heat will get absorbed on the way, and what is happening with that absorbed heat? उस absorbed heat से हर point का temperature क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. And then there will be steady state. उसका मतलब क्या है? हर पॉइंट का टेम्परेचर सर्टेन लेवल तक बढ़ चुका है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा. देन whatever amount of heat is entering here will reach here. That is called, things happen in the steady state. And in the steady state, power
or power living is defined as this formula. So this formula is given for steady state, not before that. So before that, if you see, happening, some heat was getting sunk in between. कहीं ना कहीं हीट बीच में अब्सॉर्ब हो रहा था. सो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा है अलोंग द रॉड. और प्रोफाइल कैसा था, तो मैंने बताया था इस पॉइंट का टेम्परेचर सबसे हाई होगा, उसके बाद टेम्परेचर लीनियरली ड्रॉप करता है. यहाँ पे टेम्परेचर है T2, यहाँ पे ये टेम्परेचर है T1. सो T1 से टेम्परेचर T2 लीनियरली ड्रॉप करेगा अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड. सो दिस ऑल थिंग्स हैपन व्हेन before the steady state. And in steady state, what will be the scene? ये टेम्परेचर प्रोफाइल कांस्टेंट रहेगा. जो भी हीट एंटर कर रहा है बाहर जाएगा, क्योंकि अब हीट का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर प्रोफाइल कांस्टेंट रहा है. ठीक है. नाउ वी विल लुक एट दिस कंडक्शन मेथड फ्रॉम करंट कॉन्सेप्ट. सो यहाँ पे देखो, इसका टेम्परेचर है TC, इसका टेम्परेचर है TD. TC इज ग्रेटर देन TD एंड वी आर connecting these two by a conducting rod जिसका लेंथ क्या है L, है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. सो करंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? करंट याद है तुम लोगों को? हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. देन यहाँ पे भी हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? हीट करंट. क्या डिफाइन कर रहे हैं? हीट करंट. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, सो पावर वी आर डिफाइनिंग. और करंट को रेट ऑफ फ्लो चार्ज बोलते हैं, और इसका वैल्यू कितना था? V बाई आर. V इज व्हाट? योर पोटेंशियल डिफरेंस. और यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको? डिफाइन कर रहे हैं डेल्टा T, दैट इज व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंस. क्योंकि देखो करंट क्यों फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. और हीट क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. सो यहाँ पे जो पोटेंशियल रोल प्ले कर रहा है, सेम रोल यहाँ पे डेल्टा T विल प्ले, राइट. सो दिस थिंग V बाई आर है, सॉरी, आर इज रेजिस्टेंस. और यहाँ पे अगर मैं लिखूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ L बाई के ए, क्योंकि ये किसके बराबर है? डेल्टा T इंटू के ए बाई एल. यही है ना. के ए को मैं नीचे लेकर आ गई, L बाई के ए. कैन आई राइट लाइक दिस? आई कैन. सो पे जो रेजिस्टेंस है वो L बाई के ए से रिलेट हो रहा है. अब देखो रेजिस्टेंस को भी हम ब्रेक कर सकते हैं. हमें पता है कि रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? रो इंटू L बाई, where rho is what? Resistivity. And here if you see here, इसको और ब्रेक कर सकते हैं हम. V बाई L बाई सिग्मा ए क्या होता है? कंडक्टिविटी. ठीक है. और यहाँ पे K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी. A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहाँ भी A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यहाँ है लेंथ ऑफ द रॉड. यहाँ भी L क्या है? उस रजिस्टर का लेंथ. सो देर इज रेजेम्बलेंस, पैरेलल्स यू कैन ड्रॉ. अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हीट करंट जब हम कैलकुलेट करेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट इट लाइक टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट थर्मल रेजिस्टेंस गेटिंग ऑफर्ड. ठीक है. सो इस थर्मल रेजिस्टेंस कोड डन है. सो थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? ये होगा तुम्हारा L बाई के ए. नाउ इट इज सिग्निफिकेंट कि हम इस पैरेलल को हम ड्रॉ करें. व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट? क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी हो सकता है तुम्हारा क्या हो, तुम्हें ये दिया हो कि रॉड है, उससे दूसरा भी कनेक्टेड है, तीसरा भी कनेक्टेड है. अब बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा है. तो we can apply the concept of resistor being series and being parallel. Then we can calculate R equivalent and then we can calculate heat current. I will show you that. But before that, let's look over this equation that we have got here. So heat current जो हमें मिला वो क्या मिला? Temperature difference by thermal resistance. Done है. और थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कितना मिला है? थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिला? RT कितना मिला बताओ? L बाई के. डन. चलो अब सीरीज कॉम्बिनेशन पे जाते हैं. सपोज कर लो हमने यहाँ पे दो रॉड लिया. ठीक है. एक A और दूसरा है B. डन है. अब इन दोनों को हम इन दो रॉड के हेल्प से इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर बॉडीज को कनेक्ट. ठीक है. इसका टेम्परेचर क्या है? एक का TC है, दूसरे का TD. TC इज ग्रेटर देन TD. हीट यहां से फ्लो करेगा. डन है. अब सपोज कर लो इसका थर्मल कंडक्टिविटी Ka है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी Kb. अब बताओ सीरीज एंड पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल?
Let's right now focus on series combination. So we say two registers are in series if current flowing through them is same, राइट right? जैसे अगर तुम सर्किट की बात करो तो अभी तुम लोग 12 में नहीं हो, सो आई विल यूज सिंपल सर्किट. दो रजिस्टर ले लो, ऐसे बैटरी लगा दो. सो हियर करंट इज फ्लोइंग एंड इफ दिस इज R1, दिस इज R2, देन थ्रू दीज टू रजिस्टर्स सेम करंट इज फ्लोइंग, सेम आई करंट. सो हम बोलेंगे ये दोनों करंट क्या है, सीरीज में. डन. हियर ऑल्सो इफ यू सी, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, वॉट एवर हीट इज एंटर, the same heat will enter here and same heat will flow through B rod also and will get ejected here, right? So through rod A and B, same heat current is flowing. It means A and B are in series. So अगर तुम्हें यहाँ पे डेल्टा Q by डेल्टा T निकालना है, that is heat current, then what you will do, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस देख लो. दिस इज हाउ मच, Tc माइनस Tt डिवाइडेड बाय क्या कर दो, R इक्विवेलेंट. ठीक है. सो R इक्विवेलेंट अगर करोगे तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ. ये आएगा तुम्हारा R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में वी ऐड रेजिस्टर्स लाइक दिस, R1 प्लस R2. R1 का वैल्यू क्या होगा, इसका लेंथ L1 ले लो, इसका लेंथ L2 ले लो. सो दिस इज L1 बाई के ए प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका A1 ले लो, ठीक है, और इसका A2, A2 सेम है, बट लेट्स यूज द नोटेशन. एंड R2 विल बी L2 बाई के बी A2, ठीक है. सो R इक्विवेलेंट हमारा निकल गया. डन है. R इक्विवेलेंट क्या हुआ हमारा, निकल गया. थिंग इज सॉर्टेड, राइट? सो एक तो तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में ये चीज हेल्पफुल होगा टू कैलकुलेट हीट करंट लाइक दिस. सेकेंड थिंग ये है, कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछेगा कि मुझे ये बताओ, वी आर यूजिंग हियर टू रॉड्स, राइट? वी आर यूजिंग हियर व्हाट, टू रॉड्स, वन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K, अनदर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी Kb, right? So in the question it will be asked like, what rod should be used, I mean if we are using single rod, then should be its conductivity for the same flow of heat as it was flowing in the first case. So first case mein how much heat is flowing, Tc minus Td by R equivalent. And question is said that choose a rod and tell me what will be its thermal conductivity such that same current will flow as before. So suppose we will take a rod of length L1 plus L2, है ना? Its area of cross section A, डन है. So let's say its thermal conductivity is K, डन है. So heat current क्या लिखोगे सेकेंड केस में, heat current क्या लिखने वाले हो बताओ. You will write delta Q by delta T is equal to Tc minus Td is equal to how much, R, and according to this R will be equal to how much, it will be equal to L1 plus L2 divided by Ka, ठीक है. So this delta Q by delta T is equal to this delta Q by delta T, done है. So here you will put the value of R equivalent and you will equate this equation 1 with equation 2, and then you will get the value of K in terms of L1, L2 and A and Ka, Kb, right? ठीक है. Anyone having any doubt in this? We will do questions, but just now I'm just giving you the hint of what sort of question can come. Questions we will do, no problem. ठीक है. So चलो, thank you. Parallel combination will look like what? So if we talk about current, in case of current what happens, लोगों को भी पता होगा, when registers look like this, then we say they are in parallel. Why they are in parallel? Because potential difference between these two registers R1 and R2 is same as that of potential of battery, or R1 and R2 के cross potential difference is same, and that is what we say what they are in parallel. Done. So for rod to be in parallel, in case of thermal current flow, temperature difference should be same. So this is rod 1 and this is rod 2. If you talk about 1 and 2, so 1 का एक end ये है, दूसरा end ये है. So one end का temperature
है टीसी है, और दूसरे एंड का टेम्परेचर क्या है टीडी। सिमिलरली फोकस ऑन सेकेंड रॉड। सो सेकेंड रॉड भी का भी एक एंड यहीं पे है, सो इट्स टेम्परेचर इज ऑल्सो टीसी एंड अनदर एंड हैज अ टेम्परेचर ऑफ टीडी. So temperature difference between these two wire is what? Between these two rod is what? Same. So they are in parallel. Now if they are in parallel, how we will add them? I mean R1 फिर से यहाँ लिखो. R1 क्या लिखोगे? लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लो, इसका K2 मान लो, इसका K1 मान लो कंडक्टिविटी. सो R1 क्या होगा? L बाई K1A, और R2 का तुम्हारा L बाई K2A. And what is R equivalent? So for parallel, we combine it like 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Same thing you do here. 1 by R equivalent is equal to K1, K1A by L plus what you will write? K2A by L. Done. So from here you will get R equivalent. And then heat current, if you have to calculate, then you will write what? You will write delta Q by delta T is equal to temperature difference Tc minus Td divided by R equivalent. Done है. अगर K equivalent भी निकालना है तो you can calculate just like I told you in series combination case, है ना, कि अगर सिंगल, इन दोनों की जगह अगर सिंगल रॉड यूज करना है जिसके थ्रू भी सेम करंट फ्लो हो, तो इसका K क्या होगा? दैट इज कॉल्ड K equivalent, right? So that also we can calculate. Done है. So this series parallel is clear, everyone. Need to do more number of questions to understand it. किसी को डाउट है? एनीवन? चलो ठीक है. If you have doubt, you can let me know. This is one that I have included. So do it and let me know. Okay. Thank you, Harmit. Read the question carefully. First, time to read the question and then solve it. I hope you all are doing it. जंक्शन का टेम्परेचर पूछा है ना, जंक्शन का टेम्परेचर कुछ भी T ले लेना. ठीक है. हाउ यू कैन सॉल्व इट? यू कैन सिंपली यूज द लॉजिक. क्या यूज करना है तुम्हें? ये कि यहाँ से जो हीट निकलेगा ऐसे, ठीक है, सेम हीट यहाँ पहुंचेगा और सेम हीट इधर की तरफ जाएगा. यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि आई मीन हीट करंट इज सेम, राइट? सो उस हीट करंट को मैं H मान लेती हूँ. देन सो H कैन बी कैलकुलेटेड बाय
100 डिग्री एंड टी टेम्परेचर, कैसे? सो एच को लिख सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस 100 - टी डिवाइडेड बाई इस रॉड का रेजिस्टेंस दैट इज लेंथ एल बाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और हीट को सेम हीट इज गोइंग साइड, so that heat you can calculate by using temperature difference T and 0 also. So heat H can be written as T minus 0 divided by resistance of this rod, silk, what is this? Steel rod, right? So that will be length is same now. The length is different. Same length. So L by K steel into area of cross section. These two are equal, right? Compare these two. So यहाँ पे 100 माइनस टी बाई एल बाई के सी ए को क्या लिखो, इक्वल टू टी माइनस 0 बाई एल बाई के एस ए। ठीक है, सो यहाँ से एल एल कैंसिल होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, के सी को ऊपर लेकर जाओ। अब के सी का वैल्यू कितना है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 385, तो 100 माइनस टी इंटू 385 विल बी इक्वल टू हाउ मच? के सी Ks into T. So Ks is how much? 50. 50 into T. I got some answer, I guess. Harmit. Okay. D you are getting. I don't know the answer actually. I'm really sorry. So if you have got it, it must be correct, huh? 38500 385T is equal to 50T. Solve it. Whatever answer you are getting is correct. Okay. चलो, बहुत बढ़िया. So D will be the correct answer, right? I am taking it now. I have not included the answer, sorry. No, here it is given 88 degree. Yes, I have included. Sorry. D is the correct answer. Great. Now let's start with further things. Okay. Why some cooking pots have copper coating on the bottom? Why there is copper coating on the bottom? Can anyone answer? कॉपर कोटिंग क्यों होता है? क्योंकि जब हम कुक कर रहे होते हैं, हमारा टास्क क्या है? खाने का बिल कम से कम आए, आई मीन गैस कम से कम खत्म हो, है ना? सो वी विल कंडक्ट्स मोर, यस हरमित। सो इसका के क्या होता है? काफी हाई होता है। जो कॉपर है ना, इट हैज ए हाई के, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। इफ दिस इज हाई देन हीट फ्लो, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? डेल्टा टी बाई क्या होता है? इंटू के ए बाई एल। सो हीट करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसे भी नाम से ही क्लियर है, थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वो हीट करेंट को अपने थ्रू अलाउ करेगा। सो दैट इज वाई वी यूज कॉपर कोटिंग, है ना? कोटिंग्स होते हैं, ऐसे कोटिंग्स वाले ही यूटेंसिल्स लेने चाहिए। नाउ विल सी कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन को हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है। सो कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। यहाँ पे एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर होता है। कंडक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया था, देयर इज नो actual motion of matter. Energy is getting transferred through vibration of individual atoms. ठीक है? But in convection what happens? Actual motion होता है। कैसे होता है? That we'll see. Convection can be natural or forced. We will see the example. In natural convection, gravity plays an important role. जैसे देखो, इसको तुमने दिया heat. So there is one nature का law that when you heat something, when something gets warm, it gets light. ठीक है? So when you are heating this water, the water that is just in the contact with the fire or just in the contact with the oven, what will happen? First it will get heated. So what is getting heated will get lighter. So यहाँ का जो water particles है ना, वो गर्म होने के बाद हल्का हो गया। तो हल्का होने के बाद क्या होगा? ग्रेविटी का रोल होगा। ऊपर का पानी ज्यादा ठंडा है, वो हेवी है। हेवी चीजें ग्रेविटी की वजह से क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे। ग्रेविटी का रोल क्या है? हेवी चीजों को वो क्या रखेगा? अपने तक रखेगा, लाइट चीज उससे दूर होती है ना? हेवी पे वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, एम इन टू जी, राइट? इफ एम इज मोर heavy then force is more, and so
कोल्ड वाटर क्या होगा, नीचे की तरफ भागेगा, और नीचे अगर तुम्हारा कोल्ड वाटर आ रहा है तो जगह ऑक्यूपाई करेगा वो, यानी कि लाइट वाटर को छोड़ना पड़ेगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। डन है। एंड व्हेन इट विल गो अबव, देन जो ठंडा पानी फिर से नीचे आया वो फिर से होगा, एंड गर्म होने के बाद वो फिर से ऊपर उठेगा क्योंकि वो हल्का हो गया है। और जो भी वार्म, सॉरी, जो भी कोल्ड वाटर ऊपर है रिलेटिवली कोल्ड, अगेन नीचे आएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा तब तक जब तक पूरा कंटेनर तुम्हारा सही से, पूरे कंटेनर वाटर सही से हीट ना हो जाए। डन है। सो इन what is happening, actual motion of water molecule is happening, and here gravity is playing an important role. So याद बस तुम्हें क्या रखना है कि when things warmer it gets lighter, simple। यहाँ पे भी तुम्हारा, यहाँ पे इंटरविनिंग मीडिया में क्या है तुम्हारा, एयर है। ठीक है। सो जो चीजें यहाँ पे वाटर के साथ हो रहा है, सेम चीजें यहाँ पे तुम्हारा एयर के साथ हो रहा है। डन है। सो जो एयर मॉलिक्यूल इस फायर से जस्ट है, इट विल गेट हॉटर, सो इट विल राइज अप, और जब ये राइज अप करेगा तो हमारे हाथ तक पहुंचेगा, एंड वी विल फील द वार्म एयर। डन। सो दिस इज थ्रू कन्वेक्शन हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम लॉग टू द हैंड। ठीक है। तो ये है तुम्हारा कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन एग्जाम्पल है, जैसे बहुत सारे तुम लोग ये समंदर वाले एरियाज में रहते हो। सो समंदर वाले एरिया में तुम लोगों ने देखा होगा लेट आफ्टरनून में भी हवाएं चलती। व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो एक चीज और यहाँ पे उसका रोल है स्पेसिफिक हीट का। सो स्पेसिफिक हीट जो वाटर का होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है रिलेटिव व्हेन इट कम्स इन कंपैरिजन विद द सोइल। ठीक है। सो मॉर्निंग में सन इज राइजिंग इन द स्काई, सन यहाँ पे पहुंच गया है, वो क्या करेगा, एनर्जी देगा, उससे पानी भी गर्म होना चाहेगा और सोइल भी गर्म होगा। कौन जल्दी गर्म होगा। डन है। स्पेसिफिक हीट वाटर का ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम वाटर को हीट करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी देन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ सॉइल बाय द सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि दोपहर तक जितना लैंड वार्म होगा उससे कहीं ज्यादा, सॉरी, उससे बहुत कम कौन होगा, वाटर। डन। क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, सपोज इसको मिला 1000 जूल एनर्जी और इसको भी मिला 1000 जूल एनर्जी, दोनों का मास सेम ले लो। सो डेल्टा क्यू को क्या लिखते हो, एम एस डेल्टा टी। सो डेल्टा टी को क्या लिखोगे, टेम्परेचर राइज क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू बाई एस। आई एम सेइंग एम इज सेम, डेल्टा क्यू इज सेम। सो डेल्टा टी विल डिपेंड ऑन स्पेसिफिक हीट। जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है डेल्टा टी कम होगा। सो जितने से राइज किया है वाटर का वो कम होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लैंड। इसलिए लैंड गर्म हो जाता है पानी के कंपेयर में ज्यादा। अब देखो, अब ये अगर गर्म हुआ तो क्या होगा, जो अर्थ के सरफेस से जो टच में एयर है वो ज्यादा वार्म है, रात जो एयर वाटर के सरफेस के टच में है। डन है। सो यहाँ की हवाएं ज्यादा गर्म है, तो गर्म हवा क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये ऊपर की तरफ उठकर जाएगा, किधर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से जब गर्म हवा उठ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, और इस वैक्यूम को कौन फेंकेगा, कोल्ड एयर। यहाँ से कोल्ड एयर इधर फ्लो करेगा और इधर से वार्म एयर इधर जाएगा। सो कोल्ड ब्रीजेस फ्लोइंग। ठीक है। इसलिए लेट आफ्टरनून में हमें क्या मिलती है, ठंड हवा मिलती है इन कोस्टल रीजन। ठीक है। आई होप लोग समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्यों होता है ऐसे। हम्म। कितने लोगों का दिमाग खुला है ये बताओ, कितने लोग बंद करके बैठे हो। नहीं, सबका खुला है, मेरा ही बंद है आई गेस, है ना। क्लियर है, चलो थैंक यू। तो ये सारी चीजें तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। नाउ पोस्ट कन्वेक्शन का एग्जांपल है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो मुझे बेटर एक्सप्लेन करेंगे, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारा हार्ट है वो वर्क करता है टू पंप द फ्लूइड। सो बेसिकली यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड जो हो रहा है वो नेचुरली नहीं हो रहा है, हमारे हार्ट को काम करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट फोर्स्ड कन्वेक्शन हैपनिंग इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि ब्लड तुम्हारा
नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, कुछ ऐसा होता है ना। सो अगेंस्ट द ग्रेविटी इट इज गोइंग, और यहाँ पे कोई वार्म और वो होने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना। सो फोर्स्ड कन्वेक्शन इज हैपनिंग हियर, जस्ट एग्जांपल। अब फाइनल क्या है तुम्हारा, रेडिएशन। हमने तीन हीट ट्रांसफर देखा था, एक था कंडक्शन जो कि सॉलिड में होता है, एक था कन्वेक्शन जो कि लिक्विड में होता है। दोनों को ही मीडियम चाहिए, है ना, दोनों को ही क्या चाहिए, मीडियम। रेडिएशन क्या है, मैंने तुम लोगों को शॉर्ट में बताया था कि रेडिएशन कब एमिट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन केल्विन है वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर तुमसे कोई कि सपोज कर लो एक वार्म बॉल है और इसको हमने वैक्यूम में रख दिया, जहां पे ना तो एयर है कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो क्या ये बॉल होगा, होगा, क्योंकि ये बॉल रेडिएशन के थ्रू एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, है ना, क्योंकि ये वार्म है, इसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है, ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। सो ये ठंडा होगा, और तब तक एनर्जी इसकी रिलीज होती रहेगी नेट, जब तक टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से मैच। सो डेफिनेटली इट विल गेट कोल्डर, and that is happening with the help of what, that is happening with the help of radiation. So we will see रेडिएशन में एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। अगर शॉर्ट में और मैं बताऊं तो रेडिएशन में होता ये है, अच्छा नहीं वो 12 में पढ़ना है, सो लिव अभी टेम्परेचर को ही डिस्कस कर, ठीक है। सो कंडक्शन में क्या है तुम्हारा, कांटेक्ट की जरूरत है ना। जैसे हमने एग्जांपल्स में भी देखा, यहाँ पे था एक टीसी पे और दूसरा टीडी टेम्परेचर पे था। सो रॉड को हमने दोनों ही टेम्परेचर से कांटेक्ट में लाया था फॉर हीट फ्लो टू हैपन, राइट। कन्वेक्शन में क्या था, कन्वेक्शन में भी हमने इसको बॉइलिंग वाटर के ऊपर यहाँ पे रखा, और यहाँ पे तुम्हारा हीट क्या हुआ, ग्रेविटी के हेल्प से हीट को हमने ट्रांसफर किया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। सो ये हुआ तुम्हारा कन्वेक्शन, दोनों ही केस में हमें मीडिया की जरूरत है। थर्ड केस देखो, सन। सन क्या है, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 10⁹ से भी ज्यादा। सो ये बहुत ज्यादा रेडिएशन इमिट कर रहा है, और ये रेडिएशन अर्थ तक पहुंचता है ना। हर रोज सनराइज होता है सुबह सुबह। सो अर्थ और सन के बीच में बहुत सारे ऐसे रीजन होंगे जो वैक्यूम होगा, फिर भी सनलाइट अर्थ तक पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है, रेडिएशन कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। ये सेल्फ सस्टेनिंग होता है बेसिकली। जो रेडिएशन है ना तुम्हारा, ये हम लोगों को 12 में पढ़ना है, जो रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं, उनको और किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग। ठीक है, वो खुद ही अपना भोजन पकाते खाते आगे बढ़ते चलते, सो दे आर सेल्फ सस्टेनिंग, एंड दैट इज व्हाई रेडिएशन कैन ट्रैवल आल्सो इन वैक्यूम। ठीक है। सो दिस इज रेडिएशन। रेडिएशन में हमें कुछ चीजें पढ़नी है, एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ना है। सो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। सबसे पहले देखो, यहाँ से जो भी लाइट आ रही है दैट इज इंसिडेंट। सो एनर्जी जो इंसिडेंट हो रहा है उसको तुम मान लो क्यू इंसिडेंट। ठीक है, इतनी एनर्जी इंसिडेंट हुई। अब देखो, वॉट एवर लाइट इज फॉलिंग ऑन द अर्थ, इसका क्या क्या फेट है, इसके साथ क्या क्या हो सकता है। सो सम अमाउंट ऑफ लाइट कैन गेट रिफ्लेक्टेड, सम अमाउंट ऑफ लाइट दिस अर्थ विल अब्सॉर्ब, है ना। अर्थ वार्म होता है सन के एनर्जी को रिसीव करने के बाद, व्हाई, बिकॉज इट इज अब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ सनलाइट, ऑल्सो इट इज रिफ्लेक्टिंग, एंड ऑल्सो व्हाट विल हैपन, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन ट्रांसमिट। अर्थ के केस में इमेजिन करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल बॉडी ले लो, इस पे अगर लाइट फॉल कर रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है, अब्सॉर्ब हो सकता है और ट्रांसमिट भी हो सकता है। ठीक है। सो क्यू इंसिडेंट, टोटल लाइट इंसिडेंट क्यू इन है, इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, इसका कुछ पोर्शन ट्रांसमिट होगा, और इसका कुछ पोर्शन क्या होगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा, सच दैट क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी, है ना। दिस इज वेरी सिंपल रिलेशन। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी विल कीप इन माइंड। सो रेडिएशन तुम्हारा ऐसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही रेडिएशन। अभी हमें पढ़ना नहीं है, वी विल रीड इट इन क्लास 11, सॉरी 12। सो सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि लाइट है, उसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर।
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तुम्हारा बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर जनरेट हो रहा है उसी को हम बुला रहे हैं थर्मल रेडिएशन। आई मीन मैंने बोला ना, अगर कोई भी बॉडी का टेम्परेचर T ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, और इसी को हम रेडिएशन बुलाते हैं। थर्मल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। देखो अगर मैं तुम लोग को शॉर्ट में बताऊं तो ईएम वेव कैसे जनरेट होता है। ये होता है कि तुम्हारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होते हैं ना, वो जब वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई भी बॉडी के पास अगर वो मोनो एटॉमिक है तो, है ना, तो एनर्जी क्या है, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होता है। डन है। सो इस चार्ज को अगर वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम टेम्परेचर, देन we will say कि radiation that it is emitting is thermal radiation. Then and that is why here term is thermal radiation. So electromagnetic rate कैसे होता है? When charge particle oscillates, when charge particle vibrates. वो एनर्जी तुम इसको किसी भी फॉर्म में दो, हीट, लाइट, आई मीन जैसे लाइट तो खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आई मीन इन वट एवर फॉर्म यू आर प्रोवाइडिंग इट एनर्जी। लाइट के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे रास्ते में लाइट चल के आ रहा है, उसको रास्ते में एक चार्ज मिल गया, तो ये चार्ज इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, तो अगेन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, तो फिर से लाइट आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। यू कैन सी हियर रेडिएशन बाय अ रेड आयरन। यहाँ पे भी ये आयरन काफी हॉट है तो ये रेडिएशन एमिट करेगा, है ना। ये बल्ब का फिलामेंट देखो, ये भी काफी गर्म हो जाता है, तो गर्म होने की वजह से ये भी रेडिएशन। ठीक है, सो आई सेड यू व्हेन थर्मल रेडिएशन फॉल्स ऑन अ बॉडी इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली अब्सॉर्ब एंड ऑल्सो सम विल गेट ट्रांसमिट। ठीक है, सो देर इज ए टर्म कॉल्ड अब्सॉर्प्टिविटी। सो अब्सॉर्प्टिविटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर यहाँ से जो भी लाइट आई, सपोज करो क्यू इन अमाउंट ऑफ लाइट आया, क्यू आर अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, ट्रांसमिशन को चलो निग्लेक्ट करते हैं, तो क्यू अब्सॉर्ब कितना होगा, क्यू इंसिडेंट माइनस क्यू रिफ्लेक्टेड। डन है। सो अब्सॉर्प्टिविटी क्या है, अब्सॉर्प्टिविटी है अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग अब्सॉर्ब divided by amount of light incident. This is your what? Absorptivity. Okay. And what is your reflectivity? Again, यहाँ light आई, Q in amount of light आई और कितना reflect हुआ, QR. So reflectivity is what? QR by Q in. These are very simple terms. ठीक है, एंड देखो यहाँ पे ट्रांसमिटिविटी भी लिया है। सो ट्रांसमिटिविटी अगर डिफाइन करोगे तो मैंने बोला था क्यू इन आ रहा है, क्यू आर रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्यू ए अब्सॉर्ब हो रहा है और क्यू टी ट्रांसमिट हो रहा है, बिना कुछ हुए क्रॉस करके निकल गया। सो ट्रांसमिटिविटी विल बी व्हाट, क्यू टी बाई क्यू ए, सॉरी क्यू इन। डन है। सो लेट मी करेक्ट दैट हियर ऑल्सो, सिंस यहाँ पे ट्रांसमिट भी हुआ है तो क्यू टी को ले ही लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे ले, डन है। Now the amount of heat that a body can absorb by radiation depends on the color of body. डन है। सो बेसिकली अगर यहाँ पे कोई भी बॉडी है, सपोज कर लो एक व्हाइट बॉडी है और एक कोई भी और कलर ले लो, ब्लू कलर ले लो, दोनों पे ही सनलाइट फॉल कर रहा है। सपोज मैंने एक दिन व्हाइट ड्रेस पहना, दूसरे दिन ब्लू ड्रेस पहना, तो कौन से दिन मैं ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करूँ, विल डिपेंड ऑन कलर। ठीक है, सो रेडिएशन कितना अब्सॉर्ब होता है डिपेंड्स ऑन what color it is falling. So basically this is a fact, this is an observation that we have seen, it depends on color। डन है। एंड बेसिकली लाइटर कलर जो होते हैं ना वो कम से कम लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, यानी कि वो कम रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगा, और जो ब्लैक बॉडी होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। डन। सो ब्लैक बॉडीज अब्सॉर्ब एंड एमिट रेडिएंट एनर्जी बेटर देन बॉडीज ऑफ लाइट कलर्स। अब्सॉर्ब एंड एमिट दोनों बोला है, तो ध्यान से देखो, ब्लैक बॉडी है वो क्या कर रहा है, इस पे लाइट फॉल किया, लाइट सनलाइट, ये ज्यादा एनर्जी को absorb किया, when it will absorb more energy it will get more hotter, and if it is more hot it will also emit more energy।
So one which is good absorber is also good emitter. So black body is what? Black body is, black has to do with color here. In here I mean, कौन सा टॉपिक है, हीट ट्रांसफर में जो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ कलर से हमें लेना है। ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसा बॉडी होता है विच अब्सॉर्ब्स almost all amount of light falling on it, and hence it emits so much high amount of energy. Done. So black body. So that is why we wear white or light colored clothes in summer. समर में कलर के क्लोथ पहनते हैं सो दैट लाइट को कम अब्सॉर्ब करे तो हमें गर्मी कम फील हो। लेकिन विंटर में वी चूज डार्क कलर क्लोथ्स, क्योंकि डार्क कलर क्या, रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी क्या करती है, वो अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस आर समर क्लोथ्स, दिस आर विंटर क्लोथ्स, है ना। नाउ देखो यहाँ पे सारे थेरीज हैं, सो आई वोंट रश इनटू इट। एक्चुअली आई एम आल्सो वेरी मच टायर्ड बिकॉज़ आई हैव टेकन टू क्लासेस. It is third one, so a bit tired I am. So I won't drag this session. In tomorrow class, I will start with radiation. Okay, so जहाँ तक हो गया है, obviously that I won't discuss, but I will start with basic important thing that we have to study in radiation. Newton's law of cooling, Wien's displacement law, and then Stephen's law. These three laws we have to cover. So that we will do tomorrow. Okay, and thank you to you people who are here, हरमित एंड देवानंद, थैंक यू सो मच। सभी चले गए सबको। हाँ यार, खेलना था सबको, ठीक है, बट क्लास भी तो यही टाइम पे होती है ना। चलो तुम लोग एक काम करो, फीडबैक डाल दो, यू कैन लीव। ठीक है, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क मी नाउ। किसी के पास कोई डाउट है? चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू हरमित, थैंक यू देवानंद। You take care of yourself, enjoy, keep reading, and keep solving more number of questions. Chalo, bye bye, take care. Tomorrow we will meet with more questions and more concepts. Bye.